Hello friends, and welcome back to the English Club. And today we are going to have conditional clauses, and already we have seen lots of videos and lots of parts on conditional clauses. So we have a remaining part, and we have to see word. We have studied if, unless, should and had. हम लोगों ने if, unless, should, had को देखा है. आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल क्लॉज में वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं एज ए कनेक्टर के सेंस में. तो आइए एक बार रिवीजन क्लासेस को लेते हुए हम लोग वर्ब तक पहुंचते हैं. शुरुआत करते हैं सेशंस को. सबसे पहले हम लोगों को कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का पैटर्न्स पता है. ये चीज हम लोगों को पता है. तो आइए सबसे पहले कंडीशनल टाइप 1 पर एक सेंटेंस इमेजिन करते हैं, एक थॉट करते हैं, एक थिंक करते हैं. सॉरी, एक सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल टाइप 1 पर मेंशन करते हैं. जस्ट लाइक एन एग्जांपल, if you are my friend. प्रेजेंट की बात है. यदि वह मेरा दोस्त होता तो मुझे मदद करता. Is it of past tense or is it of present tense? Present tense. अभी at the moment. If you are my friend, मेरा दोस्त ही नहीं है ये. तू मेरा हमारा दोस्त रहते हैं ना, इसका मतलब अभी at the time when the speaker is speaking, if you are my friend, you will help me. क्या आप इस सेंटेंस को पास्ट में बना सकते हो? बनाओ. If you were my friend, if you are my friend, you would. Stop now. If you are my friend, यदि आप मेरे दोस्त होते हैं पास्ट का, पास्ट की बात चले तो सेकंड पर्सन क्या आ जाएगा? You would. You would help me. You would help me. ठीक है दोस्तों. अब हमारे पास ये हमारा क्या है? सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का. क्या आप इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? लेट मी स्टॉप. नोबडी कैन से. वी कैन चेंज दिस. इफ यू had been my friend, if you had been my friend, you would have helped me. दोस्तों अब इस if है, इस if को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू? had के थ्रू. Equivalent. Had you been my friend, had you been my friend, what will be the right answer? You would have helped me. क्लियर है? यस. जिस तरीका से आपने इस if को had के थ्रू रिप्लेस किया, सिमिलरली दोस्तों वी कैन रिप्लेस दिस if बाय वर. और हम लोग का डन हो गया. क्या होगा? वर यू माय फ्रेंड. यदि आप मेरे दोस्त होते, तो मेरा दोस्त होते ना तो हमको कल जिस कंडीशन से गुजरना पड़ा है लास्ट डे, ये मुझे नहीं होता. तुम सब चीज अपनी आंखों के सामने देखता रहा. How I was crying, how I was shouting for help, but you didn't come to me for helping. Were you my friend? What will happen? You would help me. You would. Problem is here question mark or full stop. Yes. Don't get confused. दोस्तों ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा क्या है? कनेक्टर. ठीक है ना?
ये आप सेंटेंस कर सकते हैं। आइए एक दूसरे एग्जांपल्स पर हम लोग लेकर के बातें करते हैं। एक और एग्जांपल फिर से टाइप 1 से ही शुरू करेंगे हम लोग। Next example, stop this is now over. Next sentences we will have. New sentence now. If it rains, the crops will be better. अच्छी बारिश होगी। If it rains, वर्षा होती है, because Indian agriculture totally based on rain. Rainfall, yes. बारिश नहीं होती है, स्थिति कैसी है right now? We all are watching, observing, seeing. सारा चीज हम लोग देख रहे हैं। We are familiar with that. Yeah, we are quite familiar of that. Okay. So now, if it rains, the crops will be better. फसल अच्छी होगी। Because everywhere in India there is no proper facility, availability of irrigation. सिंचाई का हर जगह उचित व्यवस्था नहीं है। नदियों के किनारे नहर की जहाँ व्यवस्था वहाँ तक तो ठीक है, और जहाँ पर ऊंचे स्थल है, हायर जो लैंड से there is nothing. So did you matter? Not we are having geography. So now, if it now can you change this into? Yes, fast. If it rained. Rained. If it rained, Crops. the crops would be clear है? सेंटेंस बनाने से पहले आप इस if को पहले रिप्लेस करो। क्या आपका बताया था ना? Should. Should Yes. रिप्लेस कर लोगे? Should it rain? The crop should be Should it rain. rain की रेंस? Rain. क्या ये बारिश होनी चाहिए? No. ये है is it? यदि. Yeah. Here this is not the modal auxiliary. Shall we live? Shall we live or lives? Shall we leave? तो फिर shall it rain or rains? Rains. क्या मॉडल के बाद V5 आता है? But it's connected here. But it's a connector here. It's not modal here. Is it okay? It's giving the meaning of if. Should she cook food? Should she cooks food? Should she cooks food? Yeah. Incorrect. Should she cook food? Because this is modal. Oh. Understand? Okay. Next example. Should he go to school? Yes, it's the right form. Incorrect. Should he go to a school? Okay. Should he goes to temple daily? Incorrect. Should he go to temple daily? क्यों? क्योंकि should वहाँ पर क्या है? Modal auxiliary है, और modal के बाद हम कौन सा verb इस्तेमाल करते हैं? V1 का। शायद मैं जो यहाँ पर should इस्तेमाल कर रहा हूँ, this is connector, इसलिए यहाँ पर V1 नहीं, क्या होगा? V5 होगा। as usual जो sentence है, और जो भी मैंने अभी अब तक sentences back में बोला, वो सारे modal से sense होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप समझ सकते हैं। Should it rains? यदि अच्छा वर्षा होती तो फिर से क्या हमको मिलेगा? The crops The crops will be better. will be better. Clear है ना? Very nice. चलो, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो सेंटेंस है if it rain the crops would be better, ठीक है? क्लियर है? Yes. क्या आप ये तो आपने पास्ट को देखा, पास्ट को पढ़ने के पहले आप हमें सेंटेंस जो वन है इस वन को निगेटिव बनाकर दिखाओ। Unless it rain. निगेटिव अनलेस किससे आ जाएगा पहले? If it doesn't rain. Yeah. If it doesn't rain. The crop. यदि वर्षा नहीं होती या नहीं होगी फ्यूचर में, The crops will not be better. Yeah, very nice dear. The crops won't be better. Yes. बना लोगे ना? Yes. Unless it rain, the crops won't be better. क्या बताया था? Unless इस it rain. if और नॉट को किस में मर्ज कर देंगे? Unless. आपको ऐसे क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आज के सेशन में if, unless, should, had and were सबको हम कवर करने वाले हैं, और बहुत क्विकली। आइए, nobody can speak, okay?
इफ एंड नॉट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? अनलेस में। स्टॉप। अनलेस इट रेन्स, जब तक कि वर्षा नहीं होगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होंगे। सिंपल वे, द क्रॉप्स won't be better. The crops won't be better. आपने देख लिया, एक को देखा, शुड को देखा, हमने अनलेस को देखा। अब हमें देखना है ऐड को। आइए तो unless it rains the crops won't be better। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्रोबेबली, नहीं तो आप लिखिए। अब हमें क्या करना है? आपने इफ को देखा, शुड को देखा, अनलेस को देखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे हैड के सहायता से। तो हैड तो फिर से मैं सेंटेंस ऐसे बताया था, फिर भी मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पास्ट तक हम लोग कन्वर्ट किए। यस, यहाँ पर देखिए, इफ इट रेन द क्रॉप्स वुड बी बेटर। ठीक है, क्रॉप्स फसल। और इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। क्या देगा? पास्ट परफेक्ट। इफ इट had rained, if it had rained, nobody can speak. If it had rained, what is the crops would, this is would dear, okay, would have been better, right? अब नाउ इस had को हम कहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे? आगे if के जगह पर, in place of if। ये had it rained, यदि अच्छा वर्षा होती, यदि बारिश अच्छी हुई होती, फिलहाल बारिश अच्छी हुई नहीं थी। कल इमेजिनेशन है, थॉट्स है पास्ट का, सपोजिशनल सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं। हम सपोज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश अच्छी हुई होती ना, तो निश्चित तौर पर फसल भी अच्छी हुई होती। फिलहाल यार पिछले साल में बारिश ने हमारा, इसलिए हमारे पास कमर टूटी हुई है। इस साल लोग इस तरह से बातें करते रहते हैं, भाई अगले सीजन समय दी जाए, हम आपके पैसे चुका देंगे। क्योंकि खाद जो भी फर्टिलाइजर से काफ़ी महंगे हो चुके हैं। डेफिनेटली यदि अच्छी फसल ना हो तो उनकी पूंजी, खुद की कैपिटल, घर की कैपिटल जो है लॉस जाती है। हम लोग देख रहे हैं करीब से होकर के कितनी फर्टिलाइजर, डीएपी की कीमत 1600-1800 रुपये का इनकम है, नथिंग है। तो इफ इट हैड बेटर, इफ इट रेन्ड बेटर, यहाँ पर था इफ इट हैड रेन्ड, माय गॉड व्हाट आई एम टेलिंग, इफ इट रेन्ड, if it had rained, the crops would have been better. Had it rained better, better is the no. Had it rained, बारिश से अच्छी हुई थी, तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे? The crops would have been better. चलिए, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, सपोर्ट भी नहीं कर सकते, बारिश अच्छी भी नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया? अब हम इसको भी निगेटिव बना सकते हैं ना? yes. बनाओ। दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप hadn't इस्तेमाल कर दीजिए, hadn't it rained, the crops would not have rained। तो कनेक्टर्स में नहीं ना, ये तो हमारा कनेक्टर्स है ना, तो कनेक्टर्स में नेगेटिव का इस्तेमाल ना करके हम लोग कहाँ पर चलें, ज़्यादा बेहतर लगेगा? या had it not, क्योंकि हो सकता है hadn't लिखने में लोगों को कंफ्यूजन है, कहीं पास्ट परफेक्ट का निगेटिव तो नहीं बनाया हुआ है, यस नो क्वेश्चन का। स्टॉप। had it not rained,
The crops would not have been. the crops Would not have been. would done would not have been. ये हमारा हो गया। अब सर वर्ड से करके दिखाइए वर्ड से। तो क्या इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है? No. तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ अलग एक्स्ट्रा सेंटेंस होगा। जैसे हम लोग सपोजिशनल होता, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता। इफ आई एम लाइक दिस आई विल डू लाइक दैट। यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता। लोग हम इस तरह से करते हैं। चलिए, तो यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा में क्या क्या होता? तो इफ आई वर अ बर्ड। यहाँ पर वन इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देना है दोस्तों, सीखना है हम लोगों को। यदि हमारा कंडीशनल क्लॉज में पार्टिकुलरली हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो जो हमारा कंडीशनल क्लॉज में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। याद रखेंगे, ये एक नियम है। कहीं आपको सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाएगा तो आप वहां पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारा सपोजिशनल सेंटेंस हो, वर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो या कंडीशनल क्लॉज का पास्ट टेंस का, जिसमें हम लोग सपोज करते हैं, यदि वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मींस सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब इज मेंशन्ड ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब को हम लोग किस में मेंशन करते हैं? प्लूरल में। तो इफ के अनुसार आज वाज होगा कि वर होगा? वर। तो इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, यानी सपोजिशनल है पास्ट में, ऐसा होता ना तो हम ऐसा करते। फिलहाल यार वैसा हम थे नहीं, मैंने वैसा किया। तो आई वुड फ्लाई इन द I were flying in the sky. अब इसी if को रिप्लेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Where. तो फिर से आपका ये डन हो गया। चलिए Where ऐसे I कर लीजिए, स्टॉप। Where I काश मैं चिड़िया होता तो क्या करता? I would fly in the sky. Or with that, that's the end of conditional clause और एडवर्ब क्लॉज और कंडीशन। तो दोस्तों यही था कंडीशनल क्लॉज, जहां पर हमने सारे कन्वेंशंस को देखा, इफ, अनलेस, शुड, हैड, एंड वर। तो कंडीशनल क्लॉज की इस तरह से आज के सेशन के साथ ही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एक एक पार्ट को सीरियल वाइज आप जा करके देखें। कहीं पर भी आपको समझने में ऐसी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू, आप कमेंट के थ्रू आप हमसे जुड़ने की कोशिश करें। डेफिनेटली आई विल वर्क ओवर दैट। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।